سے وابستہ، مسلم لیگ نون سے وابستہ، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ اور دوسری پارٹیوں سے وابستہ آئینی ماہرین نے اس پر رائے دی ہمیں، اور متفقہ رائے دی کہ ایک اسمبلی کی تحلیل سے الیکٹورل کالج جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا کرتا، الیکشن پھر بھی ہوں گے، تو پھر ہمیں فوری طور پر اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی۔ تو اس حوالے سے جو ضمنی الیکشن تھے اس میں بھی حصہ لینا کا فیصلہ کیا، اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر تو ان اہلوں سے کل سینٹ بھی بھر جائے گا جی۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ساری پارٹیاں اس کے لیے سنجیدہ ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں اور سینٹ کو کم از کم نقصان پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ نقصان سے محفوظ رکھیں ان سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب کہ ان حالات میں کہ جب آپ اسمبلیوں کو اور جو حکومت سلیکٹڈ اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں کہ ان کا واحد حج کے خلاف کو دوبارہ انتخابات ہے، پھر ضمنی انتخابات میں حصہ لینا؟ ضمنی انتخابات میں تو آج نہیں ہیں، جب سے میرا خیال میں 2-2.5 سال گزرے ہیں ہر ضمنی الیکشن میں حصہ لیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے نہ ووٹر لسٹ پر اعتراض کیا ہے، نہ ہم نے عوام پر کوئی اعتراض کیا ہے۔ عوام کی رائے جو ہے وہ ہر الیکشن میں صحیح طور پر سامنے آئی ہے، لیکن عام انتخابات میں جو رائے قوم کی تبدیل کی گئی ہے اس پر احتجاج ہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا نہ الیکشن پر اصولی طور پر ہمارا انکار ہے، لیکن یہ کہ حصہ لینا مفید ہے یا نہ لینا مفید ہے، یہ ایک سیاسی ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ اصولی طور پر ہمیں 25 جولائی 2018 کے الیکشن پر اعتراض ہے، اس کے نتائج پہ اعتراض ہے کہ نتائج بالکل تبدیل کر دیے گئے ہیں، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا ہے، اور جس کو حق حکمرانی حاصل نہیں تھا اسی کو حق حکمرانی کیوں دیا گیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو اس حوالے سے ایک درخواست کروں گا کہ ذرا احتیاط کے ساتھ سوالات کیا کریں، اور الیکٹرانک دنیا میں چینلز پر بھی اگر اس حوالے سے احتیاط کے ساتھ تبصرے کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے، اس تجویز کو طے کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس۔ تو ابھی یہ سربراہی اجلاس ہونے کو جا رہا ہے، اور اسی میں پھر ان کی رائے سنی جائے گی، ان کی دلیل سنی جائے گی، اور اگر وہ قابل عمل ہے تو پہلے بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ باہر اختلاف کی خبر شہرت پا گئی، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ کسی پارٹی کی کوئی رائے ہے اور اس میں اس کی دلیل مضبوط ہے تو ہم نے انکار نہیں کیا ہے۔ لہذا فورم پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے، اور فورم کا اجلاس ہونے کو جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ کہہ دینا کہ جی ایک بیان آ گیا ہے اور اس بیان کا معنی یہ ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے اور اس میں اختلاف آ گیا ہے، یہ خواب جو ہے یہ کبھی بھی ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم بلے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اعتماد کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ان کے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس صورتحال؟ دیکھیے، جو خارجہ پالیسی ہے اسے اس وقت کی حکومت کمانڈ کرتی ہے۔ ہم ایسے نااہلوں کے حوالے ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ صورتحال میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، ایران اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، چائنا کو سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت دور کر دیا ہے، بہت ناراض کیا ہے، سعودی عرب بہت دور چلا گیا ہے آپ سے، امارات بہت دور چلا گیا ہے آپ سے، ملائیشیا آپ کے جہاز روک رہا ہے، برطانیہ پاکستان کو اربوں روپے کے جرمانے وصول کر رہے ہیں آپ کے جی، اور آپ ادا کر رہے ہیں جی۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ اس وقت تنہائی کا شکار ہیں۔ ہم تو یہ بات ضرور کہتے ہیں، اور جو بائیڈن بھی یہ بات سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ پاکستان کی حکومت کو ڈیموکریسی کے معیار پر ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے، کہ رویوں سے اندازہ لگ رہا ہے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان کی حکومت وہ ہو جو جمہوری معیار پر پوری اترتی ہو،
आइन के तहत एक मुनसिफाना इलेक्शन के नतीजे में और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आए वो दुनिया के साथ अवाम की नुमाइंदा बनकर बात करती है। जब दुनिया को ये एहसास हो जाता है कि ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है तो फिर आप तन्हाई की तरफ जाते हैं, फिर पब्लिक आप पे एतमाद नहीं करती। तो इस वक्त सूरत हाल ये है और हम यही कहना चाहते हैं कि जो बाइडन जो हैं वो अपने जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करें, जिस तरह के उनका नारा है, जिस तरह की उनकी शनाख्त है, जिस तरह के उसका तारुफ है दुनिया के अंदर। और बैतुल मक़दस में जो अमेरिका ने अपना सफारतखाना खोलने की बात की है वो ट्रंप का एक गैर जमहूरी फ़ैसला है। इस पर भी उनको हकीकत पसंदाना अंदाज के साथ इस खित्ते को अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ा इलाका तस्लीम करना चाहिए और वहाँ से अपना सफारतखाना वापस कर देना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से भी खित्ते में एक जमहूरी माहौल को ऊपर ले जाने में उनको एक किरदार अदा करना चाहिए। मौलाना साहब, ये हुकूमत कह रही है कि सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ेकार जो है वो तब्दील हम करा रहे हैं ओपन उस पर, तो आपका क्या राय है, क्या इस आप क्या कहना है? देखिए ये भी बोखलाहट का ही अलामत है। हुकूमत बोखलाहट के शिकार, अपने लोगों पर एतमाद नहीं है उनको, अपने वोट पर उनको एतमाद नहीं है। उनको पता है कि ये हमारे लिस्ट के लोग नहीं हैं, ये किसी और के लिस्ट के लोग हैं। तो वो समझते हैं कि शायद इस तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकेंगे, उनका वोट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि उनको अपना वोट भी नहीं मिल सकेगा। मौलाना साहब, ये बताएं कि शेख रशीद साहब गुज़श्ता एक अरसे से कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया। कौन कहता है? शेख रशीद। उनके साथ कितना हाथ हुआ है? वो अपना उनके साथ तो सारी जिंदगी होता रहा है लेकिन वो हाथ का आदी हो गया है। मौलाना साहब, ये जो अपोजिशन का मतलब पूरी अपोजिशन का खुसूसन आपका नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पे पहले दिन से एतराज़ात हैं। हज़रत नैब सिरे से एहतसाब का इदारा नहीं है, इदारा ही नहीं है। ठीक है, आपके मुताबिक लोगों को पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मुझे तज़ाद सा नजर आ रहा है कि आपके भी करीबी साथियों को, रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, कुछ को पकड़ा हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर गलत काम हो रहा है आपके मुताबिक कि अगर मौलाना साहब को हाथ डाला तो हम पिंडी का रुख करेंगे, GHQ के सामने मुजाहरा करेंगे। लेकिन उससे पहले जितनी अपोजिशन के लोग पकड़े गए हैं, आपके रिश्तेदार पकड़े जा रहे हैं, उनको बुलाया जा, उस पे खामोशी है, ये क्यों है? मेरे ख्याल में आपने जोड़ सही नहीं लगाया। नेब के हवाले से पिंडी की बात नहीं हुई है, पिंडी की बात और मौजू पे हुई है और नेब की बात और मौजू पे हुई है। नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने कहा था कि हम GHQ का रुख करेंगे। ये और मसला है। PDM के हवाले से एक इजलास जो लाहौर में हुआ था वो मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से जो हमारे डिमांड्स हैं उस हवाले से पिंडी की बात हुई है और वो फ़ैसला अब तक बरकरार है कि हम कहाँ जाने का फ़ैसला करेंगे। देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह दूँ, हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं और ये जो कुछ मुसीबत इस वक्त कौम पर मुसल्लत है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का एक जुर्म आप कह दें, उसकी ज़िम्मेदारी आप कह दें, वो अपने आप को ज़िम्मेदार तस्लीम करे। हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई,
बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, ये आपके फ़ायदे में नहीं है, आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते हैं फ़ौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहें। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। सवाल ये है कि सब कह रहे हैं कि नर जब आपकी पार्टी की दूसरे लोगों पे हाथ डाल रहा है वो एक गलत काम है, लेकिन टारगेट ये है कि अगर सिर्फ मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम नैब का भी गिराव करेंगे। हम हर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझ पर, इसकी वजह यह है कि मुझ पर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और जलीजान भी हमला, जी जलीजान पर हमला फिर मेरे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इनको ज़रा अपना जोर लगाने दें। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल वहाँ पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब खतरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का खात्मा कर देगी। लिहाजा नेब के अफसरान भी हुदूद में रहें, वो लोगों से ज़ाती दुश्मनी न पैदा करें। हम भी नेब के अफसरों को जानते हैं कि 4-5 सियासी लोगों को तो नुमायाँ कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है और हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस करके उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा ये दूसरों के करप्शन का एहतसाब करने का हक रखता है। छोड़ो, जाएं अपने हवाले से सोचें। करप्शन जो है करप्शन साबित नहीं है, बीआरटी खुद करप्शन है। साबित कर रहे हैं क्या माना है? गवर्नमेंट स्टेज है। मौलाना साहब ये बताएं, सेनेट इंतखाबात के बाद अगर जो परवेज खट्टर साहब की सेहत खुद इस बात की गवाही है जो बीआरटी का ऑर्डर हुआ है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब करेंगे? क्योंकि उनकी कोई भी नुमाइंदा आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पहले यही कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है पीडीएम ने फैसला किया था कि इस्तीफे देंगे, इस्तीफे भी नहीं आए तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। तो चंद दिन उनको खुश होने दें यार, कुछ बयान करने दें उनको। इस तरह चलता रहता है छोटी मोटी बातें जी। जब हम किसी बात में कोई आगे पीछे हो जाते हैं, कोई तारीख तब्दील कर लेते हैं, कोई हिकमत अमली, तो वो समझते हैं कि देखो वो नाकाम हो गए हैं उनके फिर चंद दिन उनको भी खुश होने दें यार, पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी आकर। मौलाना साहब, आपने खुफिया मुलाकातों की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मरकजी रहनुमा है, वफाकी उसमें बैठे हुए हैं, वो बाकायदा तौर पे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम खुद भी वहाँ पर अपने दोस्त रखते हैं, उनसे हमारी भी मुलाकातें होती हैं। तो क्या उनकी ये खुफिया मुलाकातें नहीं है? खुफिया मुलाकातें हमारी ज़रूरत नहीं है, खुफिया मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम भी उनका पर्दा रखते हैं। फिर ये पीडीएम का तहरीक जब से शुरू हुआ है तो एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते कोशिश की गई आपसे? राब्ते रहे हैं लेकिन हमें आमादा करने में नाकाम रहे हैं जी। हम अपने मौक़े पे कायम हैं, ठीक ठाक कायम हैं जी। हम ऐसे इलेक्शन को भी नहीं मानते और इलेक्शन की इस दांदी का ज़िम्मेदार भी उनको करार देते हैं। न हमने इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए हैं, न उनमें उनकी ज़िम्मेदार हैसियत को हमने अब तक उसमें तब्दीली लाए। मौलाना साहब ये बताएं कि जो आपने आज मुतालबा किया है कि इलेक्शन दोबारा से करवाए जाए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जमहूरी पार्टी हैं, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, या पूरा जो मुल्क में एक सेटअप है, फाइनेंशियल हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो
तो इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन करवाए जाए? इलेक्शन तो हर कीमत पर कराए जाए कि हल ही वही है, या तो फिर बंदूक हल है, वो तो नहीं है। आइन ही हक है उसका, आइन इलेक्शन की बात करता है, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। लिहाजा जब आपका मुल्क डूब रहा है तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मार्शल लॉ आ जाए? तो मार्शल लॉ ने तो और मुल्क को गर्क किया है हमेशा जी, इदारों को तबाह व बर्बाद किया है। आज तक जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और 70 साल से कमज़ोरी को मेंटेन कर रहा है, कमज़ोर वो तो मार्शल लॉ उनको वजह से कर रहा है जी। सियासी लोगों को अगर काम करने दिया जाए, जब काम करने देते हैं तो 3 साल के बाद उनको हटा देते हैं, 1.5 साल के बाद उनको हटा देते हैं, कोई ना कोई केस उनके खिलाफ कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी जमहूरियत फलने फूलने ही नहीं दी जाएगी, फिर शिकायत आप किससे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके ऊपर थोपा जाए कि पाकिस्तान जो है कमज़ोर हो रहा है, तो ये इनकी वजह से मुल्क को तोड़ा गया, जिम्मेदार सियासतदान को करार दे दिया गया। आज हमूद रहमान कमीशन को आप दुनिया के सामने लाएँ, पता चल जाता है कि असल जिम्मेदार कौन है उसका जी। बड़ा साहब, वज़ीर आज़म को डेट दी गई थी 31 जनवरी की इस्तीफे के लिए, तो कल 31 जनवरी है, तो उसके बाद क्या लाए? तो उसके बाद हम बैठ रहे हैं ना, बिल्कुल हम बैठ रहे सब हैं। ये बताएं, सेनेट इंतखाबात के बाद अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो ऐसी सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ आपका होगा? और दूसरा सवाल ये है, दोनों पर जवाब चाहूँगा कि क्या कबायली इलाकों का जो इंतज़ाम है वो अमली तौर पर वो फैसला जो है वो सूदमंद साबित हो रहा है? दो बातें आपने की हैं। एक है 18वीं तरमीम का मसला। 18वीं तरमीम सूबों के इख्तियारात में इजाफे का है, और सूबों के इख्तियारात में इस इजाफे का वादा सन 1973 के आइन में किया गया था। 10 या 11 साल में उनको इख्तियारात में इजाफे का आइन के ज़रिए वादा किया गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब जब 18वीं तरमीम के ज़रिए से सूबों को इख्तियारात दे दिए गए हैं, अब वापस लेना ये सूबों की एहसास महरूमियत पे और इजाफा है, जो खुदा न करे बगावत की तहरीकों में मुंतकिल ना हो जाए। लिहाजा इस किस्म की चीज़ों को हाथ डालना ये मुल्क को तकसीम करने का सबब बन सकता है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन से गुज़र रहा है, इस किस्म के मसाइल न छेड़े जाएँ। यहाँ पर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करने की बजाय एक इदारे को मजबूत करने की सोच परवान चढ़ रही है। जब तक हम इस तरजीह को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत बनाने की और कौम को ताकतवर बनाने की नहीं सोचेंगे और सिर्फ एक इदारे को ताकतवर बनाने की सोचेंगे, ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा सकेगा। आपका आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि NFC अवार्ड में जो सूबों का हिस्सा है उसमें इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। और फिर तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम समझते हैं कि मुल्क ताकतवर हो। आज फ़ौज को पाकिस्तान के बजट से 11 अरब रुपए मिलने चाहिए थे। आपके मुल्क की मईशत यहाँ तक गिर गई है कि आज उसको 7 अरब रुपए मिल रहे हैं। मेरे दिफाई बजट में क्यों इतनी कमी आ गई है? 50 और 55% की कमी क्यों आ गई है? तो मुल्क की दिफा को कमज़ोर कर दिया गया है, दिफाई ज़रूरतों को कमज़ोर कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें इस हुकूमत के अंदर हो रही हैं, और कहाँ तक हम जाना चाहते हैं, कहाँ तक इस मुल्क को डबोना चाहते हैं। तो यही वो चीज़ें होती हैं। आपके पास बहरहाल यूनिट्स हैं, ये पाकिस्तान वफाकी निज़ाम है। अगर यूनिट्स मुतमईन नहीं हैं तो आपने सिर्फ बंदूक के ज़रिए उनको मुतहद रखना है। और जहाँ तक है फाटा का ताल्लुक़, देखिए फाटा का इंतज़ाम अभी तक फाटा के अवाम ने तस्लीम नहीं किया है। फाटा के अवाम इंतहाई इज़्तिराब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न पुराना निज़ाम है न नया निज़ाम है, कुछ नहीं समझ आता कि हम किस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न वहाँ पटवारी है न वहाँ पुलिस है, और जूँ की तुम फ़ौज वहाँ पर है, अब भी वहाँ पर फ़ौज खड़ी है, फ़ौज निज़ाम को संभाल रही है। तो जब फाटा इंतज़ाम के बावजूद फ़ौज के कब्ज़े में है, दहशतगर्दी अभी भी मुनज़्ज़म है वहाँ पर और उनको ख़त्म नहीं कर सकी, तो फिर झूठे वादे क्यों किए गए हमारे साथ? कौम के सामने झूठ क्यों बोला गया कि हमने दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया है? आज भी रोज़ाना पर टारगेट किलिंग हो रही हैं हर एजेंसी के अंदर जी। तो एजेंसियों का तस्वुर भी बरकरार है, लोगों का रहन सहन और वो भी उसी तरह पुराने एजेंसियों के तहत हो रहा है। ज़िले का नाम अब भी कोई नहीं जानता, फ़ौज अब भी वहाँ पर बैठी हुई है, कंट्रोल अब भी उसी का है,
सिविलियन अथॉरिटी अब भी वहाँ नहीं जा सकी है, सिस्टम भी उनके लिए मौजूद नहीं है। जब सिस्टम ही मौजूद वहाँ नहीं है, इंतजाम का लोगों को क्या फ़ायदा हुआ आखिर? तो इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और अदालत में जो लोग गए हैं, मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस मसले को देखना होगा। जी मौलाना साहब, जो हुकूमती तर्जुमान है फॉरेन फंडिंग केस, वो कह रहे हैं कि उल्टा अपोजिशन उसमें फंस चुकी है, उस जाल में। ख़ुसूसन आप लोगों की जुमात पे वो किया जा रहा है कि लीबिया और इराक का नाम लिया जा रहा है कि भाई आपके, इस पे आप क्या कहेंगे? वो हो जाएगा, अपनी तो पूरी करो ना, पहले अपना गर्दन छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद दूसरे गर्दन की बात करो। हम कहते हैं जो इस वक्त फंडिंग केस है, और दूसरा ये कहना कि जी पब्लिक किया जाए, उसको खुलेआम इसकी समाअत की जाए, झूठ बोल रहे हैं। आपकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा किया जाए। आपने अभी तक वो पटिशन वापस नहीं ली है। और 23 अकाउंट्स के जो स्टेट बैंक ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, अभी तक उसको ओपन नहीं किया जा रहा। और इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम पर पीटीआई का दबाव है। कौन सा खत लिखा है उन्होंने कि हमारा दबाव आपके ऊपर नहीं है, आप खोल दें उसको? तो जो कुछ इस बयान देने से पहले की कानूनी पोजीशन थी वो बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, और सिर्फ बयान के जरिए लोगों में कहना चाहते हैं कि हमने तो ओपन ट्रायल का जो है उस पर आमादगी जाहिर की है। ये झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। सिर्फ एक बयान देकर लोगों में ये प्रचार करने वाली बात है। कोई तब्दीली नहीं आई, पटिशन उसी तरह मौजूद है। और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि इसको सीक्रेट रखना है, और ये भी कि पीटीआई के दबाव पे हम इसको खुफिया रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बरकरार हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो झूठ कौम के सामने न बोला जाए। और ये फंडिंग के उनके गले में फंदा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, हमारा तो सब कुछ आमने सामने हो जाएगा। हम तो इस मुल्क में एहतसाब के गिरदाब में नहीं फंसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातें ना करो, भूल जाओ इन बातों को। अब तुम अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो, अब हमसे पहले जान छुड़ा लो, फिर बात करो जी। 15 सितंबर को हुकूमत ने पंचायती इलेक्शन का ऐलान किया है, तो JUI का क्या? मुझे हैरत है इस बात पर कि आम इंतखाबात मुल्क में हुए नहीं हैं। आम इंतखाबात में धांधली हुई है। आम इंतखाबात के नतीजे में गलत हुकूमत मुल्क में मौजूद है, और अदालत कह रही है कि बल्दियाती इंतखाब कराओ। उनको, मेरी राय ये है कि अदालत को हकीकत पसंदाना अवाम की सोच को समझना चाहिए, और उनको इस बात पर सो मोटो करना चाहिए कि अदालत इस इलेक्शन को निल एंड वाइड कर दीजिए। बखैर बस 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 बस